भी ड्रग यूज करते हैं वो बच्चे अच्छे भी और टैलेंट भी है, और कोई कोई जो यूजर्स है वो अपना इच्छा से या पेरेंट्स का इच्छा से या गाइड से समाज के कोई बुजुर्ग उसको समझाते हैं तो वो समझते हैं, और रियली सही महीने में वो कम बैक करना इलेक्शन सेंटर में जाके अच्छी तरह से वो फिर रिकवरी करना मांगते। लेकिन एक उसमें देखा है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमी पोजीशन वो ड्रग सेंटर में, प्राइवेट सेंटर में अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे कि आपका 6 मंथ कोर्स में 40,000 का फीस मांगते हैं, और ऊपर से ये हमारा गरीब फैमिली का बच्चे जो है उसमें ज्यादातर कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे होने से, डिसकंटिन्यू होने से उसका ड्रग्स का जो रेजिस्टेंस है और बढ़ते जाता है। जैसे कि आप कंटिन्यू जाता है तो 1 डोज देता है, तो फिर गैप होके और ब्रेक होके फिर रीजॉइन करता है, तो उसका एक दिन में सपोज 2 डोज लगता है। ऐसे भी स्थिति हम पाए, उसमें ऑब्जर्व किए हैं। और इसके लिए एक कमी है इसमें एडिक्वेट मैन पावर और जो नॉलेजेबल पर्सन्स भी, इसमें रिसोर्स पर्सन की भी जरूरत है। जहां तक देखते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिकॉग्निशन नहीं है, या गवर्नमेंट का इसमें कुछ अच्छे गाइडलाइंस अगर देता है, पुलिस प्रोसेशन और हमारा हेल्थ सेक्टर से भी, मेडिकल डिपार्टमेंट से भी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इसका सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। जैसे इनवर्ड्स जो है, झगड़ा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, उसके लिए मैं ये सदन को आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता था। हमारे लिए एक अच्छी बात है, आज के बजट स्पीच में सीरियल 61 में अंदर मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 सेंटर्स में डी एडिक्शन सेंटर्स का खोलने का हमारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और डीसीएम साहब के नेतृत्व में इस बार की बजट में प्रपोज रखा है। और इनके ऊपर हमारा मांग था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट और मॉनिटरिंग हेल्थ डिपार्टमेंट से हो या पुलिस प्रशासन से हो, डिस्ट्रिक्ट में होने से अच्छा है एवरी डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर जो है। मैं इसी विषय में ये assembly is asked upon that the government of Arunachal Pradesh do take steps to stop growing concern of substance abuse and addiction, which is affecting the youths across the state. As part of our collective efforts to address these pressing issues, it is asked upon for establishment of fully functional de-addiction center in every with necessary infrastructure and adequate manpower. Thank you, sir. Now, honorable members who would like to participate may speak. First, I would like to give time to Sri Wangling Nawangdok, Honorable MLA. Speaker, sir, thank you for permitting me to speak on this very important topic of drug abuse in our state. I would also like to state that in the assembly session in 2024 July, I had asked this very pertinent question, and
the reply given to me is very shocking, to state a fact that Arunachal is one of the top 4 states in the country for all categories of drug abuse. That was stated in the assembly. And we have to understand that the drug abuse scenario in the state is very alarming and frightening. Some schemes have been initiated by the government in regard to controlling the drug abuse, especially among the youth of our state. The MMNMA, Mukhya Mantri Nasha Mukhi Abhiyan, which has done a commendable work in trying to minimize drug abuse amongst the youth of our state. I would also like to state that this is a very deeply emotive and sentimental issue. And our concern is particularly on the effect that it has on the youth population of our state. 2024-25 had been declared by the state government as the year of the youth, wherein all facilities, all sort of vocational activities, encouragement is given to the youth, particularly, having been declared a year of the youth. This year's budget also, we have emphasized on youth. Every forum that we speak on, we insist upon the youth. The youth are the future of our state, of our nation, in nation building. And the plan and the policies that are being initiated by the planning department is for all of us to see, to encourage youth activities, games and sports, cultural activities, what have you. Now, when coming into this drug abuse, when our population is being affected by consumption of various categories of drug, what will happen to the condition of our state? Where will it lead to? Where will all the plans and policies that we initiate for the youth will go? If the youth becomes lethargic, addicted. So it's a deep concern. And we have to appreciate the situation, the alarming situation that is occurring in our state. In fact, amongst various states and even in the country, small population. Now, if all of us are affected by this these drugs, what will happen? A 2019 survey by the Ministry of Social Justice and Empowerment reported that in Arunachal Pradesh, 2019, this is 2019, it may be 6 years have gone by, 28% of the population consumes alcohol. And in far as drug is concerned, 7.36 use cannabis, 22.18% use opioids, and 3.01 consume cocaine. If that is not alarming, what is it? As far as statistics and the percentage wise is concerned, we have to really take up the cudgels in a war footing. I would also emphasize mostly on the situation in Tirap. In Tirap, 8.65% of individuals aged between 10 and 17 regularly inhale drugs
And in response to this crisis, the Tirap district administration and police had launched several initiatives, such as the Project Pratighat, which was initiated on August 23rd, 2023. This project mobilized women's group, self-help organizations to counsel drug-addicted youths. By September 2023, 83 individuals had received counseling and 14 entering treatment centers. Additionally, in a 2-month span, 16 drug peddlers were arrested and 171 grams of heroin valued at rupees 10 lakhs were seized. While applauding this initiative taken by the district administration, there is more to be done. Now people have started shifting to hard substance. That is truly a matter of concern. Now also with the drug abuse taking rampant proportions, the risk of spreading HIV, AIDS is also quite frightening. Usually to save money, there is sharing of needle, and the percentage and the increasement of HIV AIDS in our state is also another alarming case. I mean, I do not know the official figures given. It may be not in a minuscule, in a way, but unofficial figures which you hear from sources are alarming, so to say. And these are matter of concern which has to be addressed. So I feel that the member who who initiated this discussion, I think is appropriate. And re-addiction centers must be set up in all the districts. That was what assured to me also when I asked this question in July 2024, that there would be de-addiction centers in 7 districts of the state. I do not know whether it's been set up or not. So I feel that the government must prioritize the situation, the very alarming and shocking situation in our state, where the youth has been particularly affected. So, if the de-addiction centers are run by the government, I think that will be more appropriate. There are so many private de-addiction centers which are mushrooming. The incidents like Pasighat and maybe some other places, it may occur. We can't say for sure what will happen tomorrow. So if the advantages of government de-addiction centers will be that government-run centers provide free or subsidized treatment, making rehabilitation accessible to economically weaker sections of the society. And it is a wider reach, secondly. Thirdly, standardized treatment will be given, ensuring quality care and ethical practices. Fourthly, there is a public trust when the government takes the initiative. Government initiatives often include awareness campaign, reducing stigma, and encouraging people to seek help. And fifthly, integration with other public services. Patients can benefit from other government welfare programs such as vocational training, employment support, and mental health services, aiding long-term recovery. Now, the private de-addiction centers, there are certain disadvantages which I would like to state. Number one is the high cost of the treatment. As Honorable Member has stated, the mover of this topic has stated that exorbitantly high charges are made to the addicts. They are poor people, mostly poor people are affected,
by this addiction, and they have to pay exorbitantly very high fees for treatment, 40, 50, 60,000, maybe more. So there also is a disadvantage. And there is a profit-driven approach by the private de-addiction centers to make money. Thirdly, there is a lack of standardization, lack of awareness creation, protocol, and limited accessibilities. Now the question also arises on the success rate in private this thing. There are complaints in one particular area of my district. There is a de-addiction center there. The government gives them a lot of opportunity, a lot of support to the de-addiction center, but then the success rate is quite nominal. And moreover, there is a complaint from the villagers where the de-addiction center is established, that as soon as this de-addiction center was established in that particular locality, more drugs addicts have come up from there. So this is also a matter of concern. Now, the government, if it takes the initiative, saying that all de-addiction centers will be established in the hospitals itself, there will be a branch, a department where the de-addiction centers can be established. And I think all the best. There will be proper care, more infrastructure will be applicable, and admission for this to this addiction centers, the cost will be minimized. So these are matters which has to be taken into consideration, and I feel that we should not lack in support to the youth of our state, that we should not give them an opportunity for drugs to kill them. We need our youth. We seek their welfare. We need their support, and we have to support them also. So before it's too late, not only giving them lip service, I think practically the government has to take the initiative and come out with a program and a plan and a policy. We have to think. Otherwise, all this planning, with budget, and whatever discussion which we are having, if there is no youth, what will be the condition of our state? We want healthy youth, with educated, with an attitude of positiveness. There is a concern of our people, of the state, of this government. So I feel that government must take the initiative. Yes, of course, totally not that I am against private de-addiction centers. Centers which are recognized, which have got alliance with proper NGOs, named famous, centers, maybe from outside the state or even international concerns, that can also be appreciated and supported. So government has to take a very deep analysis on the situation, prevalent situation of drug abuse in our state, and also keep stringent action, take stringent action on those drug traffickers to try to make our state dark with drug abuse. So I feel that this is a step in which the government should appreciate the concern of the members and also the concern of the people of our state in trying to control drug abuse in our state. Thank you. Thank you, sir. Next, Nabong Vivekji, Honorable MLA. Nabong Vivekji. Thank you, sir, for giving me this chance. ये जो ड्रग्स का मुद्दा है, ये समाज में मैं कहूँगा कि एक बीमारी का रूप ले लिया। ये कैंसर से भी ज़्यादा सीरियस है। इस शायद मैं जहाँ तक जाता हूँ कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। ये जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं, एक एडिक्ट दूसरा एडिक्ट को ला के समझा के दूसरा बनाता है, फिर तीसरा बनाता है, तो दिस इज वेरी सीरियस। इसलिए मैं भी सोचा कि मेरा पापुमपारे में भी हालत कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा भी आसाम बॉर्डर है, या तो
किसी भी कारण से हो, ड्रग का मेनांस यहाँ बहुत है। और इसमें क्या मैं देखा कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स है बोल रहा है, एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट मैंने जो देखा, आई मे बी रॉन्ग, 3 सरकारी चल रहा है, पासीघाट, तेजू, बीपीएम का कैपेसिटी 10-10 करके है और काफी सारा शायद एनजीओ मैनेज है। इसमें प्रॉपर कोई एसओपी होना चाहिए कि कोई प्राइवेट खोले तो भी कैसे खोलना है। जैसे कोई स्कूल एस्टैब्लिश करते हो तो बहुत सारा गाइडलाइन है, परमिशन लेना होगा। तो क्या है कि ये डी एडिक्शन सेंटर बोल के ये एक हो सकता है कि उसी डी एडिक्शन सेंटर से, जैसे प्रीवियस सीनियर मेंबर ने बोला है, उसी सेंटर से भी ड्रग को फैला रहा होगा। ये सारा चीज एक जो उसमें एडिक्शन सेंटर में जो लोग चला रहे हैं कितना कैपेबल है, पोटेंशियल क्या है, डॉक्टर्स है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं, ड्रग एडिक्शन के लिए एक्सपर्ट है कि नहीं। तो सारा एक सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा एक गाइडलाइन बनाना, ऑपरेशन गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल सकने से इसका जो भी डी एडिक्शन सेंटर खोलना है उस एनजीओ का चल को देखना है। या तो सरकारी पुलिस तो बहुत अच्छा है, एक तरफ को परमिशन देना है, एरिया को विजिट करना है। मैंने ऐसा 1-2 सेंटर को पता है जो 2-3 कमरा रेंट में ले लिया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया। उसमें तो ड्रग एडिक्ट बैठेगा तो और डिप्रेशन होकर कभी जिंदगी ठीक होगा नहीं। और जितना डी एडिक्शन सेंटर होगा उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको स्किल डेवलपमेंट से लिंक करना है। जो थोड़ा रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, उसको ऐसा कुछ ना कुछ स्किल सिखाना है ताकि वहां से निकल के समाज में कुछ और दूसरा काम कर सके। कुछ स्किल लेके अगर निकलता हो 5-6 महीना बाद या साल भर बाद, वो समाज में दूसरा काम करे, नहीं तो फिर दोबारा निकल के अगेन रिलैप्स हो जाता है, अगेन ही विल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। तो जो ये प्राइवेट मेंबर हमारा मेंबर ने लाया है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं और सरकार से ये आग्रह करता हूं कि एज फार एज पॉसिबल गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा एक अच्छा ये रिहैब सेंटर खोले विद कैपेसिटी ऑफ 100-200, ऐसा करके उसको फुल प्लेज प्लेइंग एरिया होना चाहिए, सफिशिएंट एरिया रहना चाहिए कि उनको इंडोर गेम, आउटडोर गेम सारा एक इंस्टीट्यूशन जैसा चलना चाहिए, स्कूल जैसा चलना चाहिए। क्योंकि वो मैक्सिमम जो ड्रग्स में जो फंसा हुआ है, ऑल आर द आवर यूथ्स, द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, यंग लड़का लड़की लोग ही है। तो इसके लिए सरकार को जैसे मैंने कहा है एक प्रॉपर एसओपी बनाकर, और जो अभी चल रहा है प्राइवेट, उनको भी कोई थ्रू सम एक्सपर्ट, डॉक्टर हो चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, विजिट करके सर्टिफाई करना है कि ये हाइजेनिक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। सारा चीज नहीं देखने से हम लोग ऐसे चर्चा करते रहते हैं, फिर असेंबली से निकालने के बाद ये चीज चल रहा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आग्रह करता हूँ इस बार सरकार जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री देखता है, डिपार्टमेंट देखता है, ड्रग डी एडिक्शन को सीरियस लेना है। और दूसरा इशू जो ड्रग ट्रैफिकिंग को देखना है, वो चीज अलग सब्जेक्ट है। तो ड्रग्स ले चुका है उसको रिहैब करके, मेनली मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि स्किल डेवलपमेंट से आप इसको लिंकअप कीजिए ताकि वो समाज में दूसरा काम में लगा रहे। तो ये कहकर मैं जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है उसको मैं सपोर्ट करता हूं और इस विषय पे सरकार बहुत ही सीरियस ध्यान देगा तो मैं विश्वास करता हूं। इतना में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। थैंक यू। Thank you. Any member? यस सर। तो next. थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी। Yeah, Nabamja. सर तो तुम यहाँ. एमएलए से पहले कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, ईटानगर पे ही कुछ काम लिया हमने। रात का समय था सर, जवान सा लड़का तकरीबन 18 साल के करीब होंगे सर, 3 जन हमारे साइट पे आए। वहां पे जितना लोहा था उसको चोरी किया। तो जब जाते वक्त हमने उसको पकड़ा करके पुलिस स्टेशन ले गया। जब पुलिस स्टेशन ले गया तो पता चला वो अच्छा घर का है, लड़का क्लास 12 का स्टूडेंट था। सर ये जो हो रहा है सर, ये हर घर पे है, ये हर घर पे है। इसलिए आज का जो रेजोल्यूशन किया
पे तो हर कोई को चर्चा करना चाहिए, हर किसी को इस पे बात करना चाहिए, अपना राय रखना चाहिए। हाँ सर, और भारत सरकार ने भी हिमाचल सरकार की तरह, पर जब तक डाटा नहीं होंगे तो आप पॉलिसी नहीं बना सकते। 2018 में पहली बार भारत सरकार ने एम्स के अंदर पे they did a data survey. They found out that 16 crore people are taking alcohol. Out of that, 5.7 crore are dependent. I can give you the stats. 2.1 crore on cannabis. 25 lakh people dependent on that. 2.26 crore on opiates. 72 lakhs dependent on. 1.7% children जो इनहेल करता है सर, वो डेंड्राइट हो गया, आपको पता है, एडिसिव्स हो गया, उसको सूंघने वाला 1.7% टोटल चिल्ड्रन। और आज वांगलिन सर ने बताया हमारे यहाँ 28% दारू पे इन्वॉल्व है, ड्रग्स पे इन्वॉल्व है। सर इसका प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट ट्रीट द सिम्टम, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड इन द फर्स्ट स्टेप। हम सिम्टम को ट्रीट नहीं कर सकता सर। आपका जब लिवर प्रॉब्लम होता है, जॉन्डिस होता है सर, आप जॉन्डिस को ट्रीट नहीं करता, आपको लिवर का अंदर पे जो बीमार है उसको आप ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए एलएफटी लेना पड़ेगा, सबसे फंक्शनिंग टेस्ट। बिलिरुबिन का टोटल काउंट कितना है, एस बिलिरुबिन का कितना, डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना आया सर, उसको आप देखना पड़ेगा सर। इट नीड्स ए प्रॉपर सर्जरी। टाइम हैज कम, वी कैन नॉट जस्ट सिट ऑन इट। We are talking about 2.72 lakhs youth in our state. Those who are studying, 2.72 lakhs I'm talking about. We are talking about the youth population of India, which is 15 to 29 years of age. We have 450 million people. I'm talking about those youths. I'm talking about 2.72 lakhs of Arunachali youths. Problem क्या है सर? सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा। सर ईटानगर पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देखिए, बच्चे लोग आते हैं, बिकॉज दिस इज एन एस्पिरेशनल। ईटानगर पे सब आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बस्ती से सब आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग। छोटा से थोड़ी ना सर वो ड्रग एडिक्ट होके निकला है। यहाँ पे आता है सर काम ढूंढ के, पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए। माँ पिताजी इतना मुश्किल से भेजता है सर, ये थोड़ी ना ये ड्रग एडिक्ट होने आता है। We have to see, we have to change the way we look at these people. They are not just people, they are our part. ये हमारा भाई है सर। जब तक हम उसको इस तरह से नहीं देखेंगे सर, we cannot solve this issue. Number one. Number two सर, आज जो बच्चे यहाँ पे ऐसे, ये कोई गरीब घर का बच्चा सिर्फ नहीं है सर, बहुत ज्यादा तो धनी घर का है। हमको पता है सर, आप बहुतों को ले गया सर अपने पर्सनल एक्सपेंस में। आई हैव गॉन, कृपा फाउंडेशन, आई हैव गॉन, आई हैव सीन हाउ इट वर्क्स। हमने देखा है सर। जब तक ये टैबू को हम नहीं हटाएंगे ना सर, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। ये टैबू को हटाना पड़ेगा। ड्रग एडिक्ट कर घर में कोई है तो सब छुपाना शुरू हो जाता है। They don't want their neighbors to know, they don't want their relatives to know. How will you solve the issue? आप अंदर बैठ के कैसे सोल्व करेगा इशू को? आपको बताना पड़ेगा, घर पे ये प्रॉब्लम है, जानना पड़ेगा, सदन पे डिस्कस होना पड़ेगा, तब जाके टैबू हटेगा सर। जब तक ये टेबू नहीं हटेगा ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, ये मेरा मानना है सर। मैं और बोलता हूं सर, ये जो है मैंने जैसा देखा है सर, ये इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रॉट इन द सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वी एज अ फैमिली हैज फेल्ड, वी एज अ सोसाइटी हैज फेल्ड। दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये किसी का गलती ना, हम सबका गलती है सर। माँ पिताजी मोबाइल पे मस्त है, बड़ा भाई अपने जिंदगी में घूम रहा है, बेटा का क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है, किसी को कोई पता नहीं सर। घर से स्कूल आता है, पूछता नहीं क्या हाल है सर। आवर सोसाइटी हैज गॉन टू द डॉग्स, द फैमिली हैज गॉन, moral fabric of the society is torn apart. For how long? सर कब तक हम ऐसा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सर, उसने 2021 को 2021 को प्रधानमंत्री नशा मुक्त भारत के अभियान 272 डिस्ट्रिक्ट को उसने अपनाया सर। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री नशा मुक्त अभियान के तहत हमारे यहाँ पे भी शुरू हुआ है सर। जैसे आपने बताया था 5 डी एडिक्शन सेंटर होंगे, 7 होंगे।
बट सर इससे नहीं होगा. वी नीड अ क्लियर कट अप्रोच, क्लियर कट पॉलिसी. सर टेबू को हटाना पड़ेगा. सबसे पहले टेबू को हटाना पड़ेगा. फैमिली को जानना देना पड़ेगा. सोसाइटी को सिखाना पड़ेगा. सर we have to involve all the CBOs. We are the state with the highest number of registered NGOs. इन registered NGO को एक एक को बुला के सर इन्वॉल्व कराना पड़ेगा. We have hundreds of student union. एक एक को बुला के इन्वॉल्व करना पड़ेगा सर. If they really think for the state, this is the time to prove. This is the time to show that you have solidarity with the youth population. We need a clear-cut policy, sir. Number 4. सर यहाँ पे 2 चीज है. एक, सबसे पहले प्रिवेंटिव अप्रोच करना पड़ेगा. हाउ डू वी प्रिवेंट दिस बिफोर वी गेट इनटू ट्रीटमेंट? सर 2 चीजें यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सीबीओ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2 पे प्रिवेंटिव अप्रोच पे सर पुलिस फोर्स को सतर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस ट्रैफिकिंग. वी हैव 15,500 पुलिस फोर्स इन द एंटायर स्टेट. वी हैव टू वंडर, इज इट इनफ? हम लोग का आईसीआर पे 279, हम लोग का दोईमुख पे, पापुम पारे पे 252. सर इज दिस इनफ? I myself personally have experienced 2 of my brother from my Toko clan was murdered in Doimuk. सर वो ओपन जगह है सर, वो मेन गेट से नहीं आता है सर. वो लोग नदी से पार करता है सर. Do we have patrolling facilities? Do we have CCTV installed there? I've lost 2 brothers. What are we talking about? सर ये कोई ऐसा ही बात नहीं है कि बात करके भूल गए सर. हर घर पे है, हर एक घर पे सर. हमको इसको जानना पड़ेगा सर. वो कोई बच्चा खुशी से नहीं लेता सर. अपना घर का प्रॉब्लम को देख के माँ पिताजी झगड़ रहा है, खाने का नहीं है, पैसा नहीं, अनएम्प्लॉयड है सर, क्या करे? That's how it starts. This is the year of human capital, you say, human resource. These are our human resource. Pass over the year of the youth. These are our youth. What are we doing? What is the dedicated budget for that? What is the dedicated budget for people like them who are suffering? My brothers, my sisters are suffering. What do? We have to take a clear stance. Number 1. Number 2, when it comes to that, sir, जैसे आपने बताया, हमारे वांगलिन साहब ने बताया, विवेक साहब ने बताया, सर कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है. हमारे अरुणाचल में देखिए सर, इतना स्कूल है. मैं जब स्कूल जाता हूं तो सर वहां पे ना ग्राउंड है. किस तरह से आप उसको परमिट देता है स्कूल खोलने के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता. अब ये चीज को हमको यहाँ पे शुरू करने नहीं देना है. School. He is rightly said, you cannot just have 2-room apartment and make it a drug de-addiction center. It needs to be certified, it needs to be regulated. There has to be a dedicated force which must study before they give recommendation and allow. We cannot take it lightly. सर इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा. कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा. गवर्नमेंट हैज टू मूव इन. गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा डी-एडिक्शन सेंटर सर. उस पे ट्रेन काउंसलर रखना पड़ेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रखना पड़ेगा सर. And the government cannot do it alone. PPP मोड पे सर हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनवाइट करना है. Those who have established themselves in the rest of the country, हम उसको भी बुलाना है सर. और हमारे जो एंटरप्राइजिंग यूथ है सर, उसको भी हमको मौका देना है ताकि they can help and work on those sector. सर हमारे यहाँ पे हमने देखे हैं बहुत से यूथ शुरू कर रहे हैं सर. सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप जैसे तैसे किसी को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर आप भेज देता है सर. Minimum it takes 3 months, sometimes they take 6 months. सर उसके वापस आने के बाद क्या? What is our policy towards those people who comes back after finishing the program? उस पे क्या है? सरकार has to make a policy. How do we absorb them back in the society? There's already a stigma attached to him. ये लड़का तो ड्रग पी के बेकार काम करने वाला है, ये तो दारू पी के घूमने वाला है. सर इसको अछूत बना देता है. They make untouchable out of them. Nobody wants to keep them in the job. Nobody wants to give them a second chance. सर हमको तो सेकंड चांस हम खुद के लिए मांगता है, लेकिन जब उनका मौका आता है सर इसको सेकंड चांस नहीं दिया जाता. We have to change the way we look, sir. Government needs to have a very concrete policy towards these people who are coming back, who wants to start a new life. वो भी सर मैं जानता हूं सर, मैंने बहुतों का साथ मैंने इंटरेक्ट किया है सर, वो भी छोड़ना चाहता है. They want to live a good life. They want to make their parents happy. They want to fit in the society. They have their own dreams. What are we doing? Ask government is a welfare government.
You're talking about the youth of the state. How are we going to approach them? Sir, we need a clear-cut policy. सर, ये जब तक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे सर. It's a very emotional subject. हमको इस पे अच्छी तरह समय देना पड़ेगा. मैं तो बोलता हूं सर, हर एक एमएलए यहाँ पे जितने भी है 60 एमएलए, सबको मेहनत करना पड़ेगा सर. सरकार को अगर हम देखते रहे तो देखते ही रह जाएंगे सर. I'm not just saying it सर. हम हमारे डिस्ट्रिक्ट पे हम शुरू कर रहे हैं सर. मैं तो हमेशा सरकार को बोलता हूं सर, आप अलग सा एक फंड रखिएगा. यहाँ पे कितने एमएलए जो अच्छा काम करना चाहता है लेकिन फंड नहीं होने के कारण कर नहीं पाता सर. जब ऐसा कोई एमएलए अच्छा काम करना चाहता है सर, यू हैव अ फंड थ्रू विच यू कैन हेल्प देम. आप देखिएगा कौन कैसा काम कर रहा है सर, एंड यू हेल्प देम. इट इज टाइम फॉर अस टू डू सुमोटो. हम लोग देख के खुद करना पड़ेगा सर. हम अगर एक दूसरा को देखते रह जाएगा तो चांद का चक्कर हो जाएगा. हमारे साथ समय नहीं है सर. I'm telling you sir, if we don't do it today, this same children now is becoming 17, 18 years, 20, 25 years sir. इसका जब बच्चा होगा सर, उसका बच्चा का क्या हाल होगा आप जान सकते. This is how the crime rate increases sir. 20 साल के बाद उसका बच्चा जो बड़ा होंगे सर, उसका हालत क्या होगा, वो भी क्राइम पे ही जाएंगे. माँ पिताजी जो ड्रग्स लेके बैठा हुआ है, जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, सोसाइटल सपोर्ट नहीं मिल रहा सर, इट विल एड टू दोस पीपल, दोस पॉपुलेशन हु विल अगेन गेट इनटू ड्रग. इट्स अ विशियस साइकिल. इफ वी हैव टू मेक ए ब्रेक, वी हैव टू डू इट नाउ. इट्स नाउ और इट्स नेवर. एंड आई बिलीव दैट आवर गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट. They have the responsibility on their shoulders. They have already opened that Arunachal de-addiction center. सोसाइटी उन्होंने खोला हुआ है सर. इसको फिर से वी हैव टू रिवाइटलाइज दैट. जैसे एजुकेशन मंत्री ने बोला था, वी हैव टू फॉलो अप सर. वी हैव टू रिव्यू इट, वेदर ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सर. इट्स अबाउट रिव्यूइंग इट सर. इट्स अबाउट फॉलोइंग इट अप सर. जब तक हम ये नहीं करेंगे सर, हम अपने भाई को, अपने बहन को नहीं बचा सकता सर. आई वुड अर्ज, I really appreciate our fellow legislators brought out this resolution. This is the need of the hour, sir. This is affecting each one of us. यहाँ पे मैं बोल दूं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसका फैमिली का ताल्लुकात इससे नहीं है. मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ. Because we are a community based organization. We are a community based community. अपना भाई बहन हेंयंग आरुम, न्यंगने आरुम, न्यंगे नदा हम लोग मिसी में बोलता है. कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई का घर पे ये है सर. इसको हम कब तक छुपाएगा. We have to come out of the taboo. We have to reopen. We have to reimagine this problem. So I would urge the government through the speaker, sir, let's constitute a committee. Let's constitute a committee which will draft a policy on this particular matter. How to combat this drug issue. How to combat the rehabilitation issue. How to combat this problem that is plaguing our society. सर, ये किसी और के घर पे नहीं हो रहा है सर, ये हमारे घर पे हो रहा है. अगर आज हम अपने आंखें मूंद लिया सर, एक दिन ऐसा आएगा हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, पापा आप जब लेजिस्लेटिव असेंबली पे थे आपने क्या किया इसके बारे में. उस समय हम अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे. There is still time, sir. We have to get our acts together. I appeal to all my fellow legislators here, and I appeal to the speaker and through you, the government of the day. Please constitute a committee. Let's not delay. Involve each one of us. Let us give our own suggestion how to go forward, how to find a way. And where there is a will, there is a way, sir. मैं तो हमेशा बोलता हूं, from darkness to light. संस्कृत में हमसो में ज्योतिग्रमे. If you ask him, let him et de gloriam, sir, to light. Let's march towards light, sir. If we save this section of the society, if we save these people, sir, we are saving ourselves. We are saving Arunachal Pradesh. We are saving Northeast. We are saving India. This will be a small step, but it is a decisive step, my dear speaker, sir. So through you, once again, with all the emotion that I have, all the strength that God has given to me, and I'm asking the government through you, sir, please sit on it, work on it. Let's do something. Let's not just wait. Let us not wait on, the third law of Newton's law of motion. Let's not wait for that, sir. Let's do something. Let's do something. Let's do something. Thank you so much. Thank you. Next, हम yung ano ba
Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity to speak on the motions moved by the Honorable MLA Shri Appam Punyoji regarding the drugs ministry across the state. So on these motions, I was trying to speak a few words. Sir, this is fact that the former speakers have already spoken in detail about the current alarming situation of the state because of this rampant drugs and opium abuses. Sir, as we all know that drugs is 100 times more dangerous than the opium that which was traditionally cultivated by the people, especially by the tribal people. So we have nothing to talk about too much, but the mechanism that we have to find out how is to fight, how is to fight and combat this drugs menace. It is silently killing thousands of people. That is in fact and still lies unrecorded. These drugs is not killing only the adults, but it is killing even the adolescents, children. कहीं कहीं में तो ऐसा होता है कि मैं चांगलंग स्पीकर साहब हम दोनों चांगलंग का है, वहां में बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ बोथ आर एडिक्टेड. तो वहां एक फैमिली में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होता है, बच्चा लड़का होता है, लड़कियां होता है, ये सब भी पूरा एडिक्टेड है. तो ये सिचुएशंस, ये अलार्मिंग सिचुएशंस, ये आई थिंक इफ इट प्रिवेल्स or at least continues, यदि not less than 15 or 20 years या 10 years तक ये होने से, let us imagine and feel what would be the situation of our society. That's why जो former speakers ने already कहा है कि private rehab centers are being undertaking these rehab centers across the state, which is quite not sufficient, really not sufficient. And in many places that we had these unpleasant custodial death cases also that took place in many places, even in Changlang also. I think two that custodial cases had took place here at rehab. तो ये गवर्नमेंट ही ये प्रॉपर एसओपी बना के, गाइडलाइंस बना के गवर्नमेंट ही उसको टैकल करने से बेहतर रहेगा. और ये है कि मैंने हम सबको भी सोचना है कि ये नशा मुक्त भारत अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी पहले से काम कर रहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान. अभी है हम लोग का ये चीफ मिनिस्टर नशा मुक्त अभियान. तो हम लोग लाइव है, इसलिए हम लोग ओनली फॉर द सेक ऑफ स्पीच वी शुड नॉट स्पीक इन दिस अदर्स हाउस. जो भी है कि हम लोग प्रैक्टिकल होना चाहिए. लेट अस डोंट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, लेट अस डोंट थ्रो द गार्बेजेस अपॉन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट काम कर रहा है, बट गवर्नमेंट, whether it is the central governments or the state governments, government can fund us, government can provide us the logistic supports, material supports, but on the grounds, we the people, elected MLAs, ministers, CBOs, student organizations, we all have to come forward together and join our hands to combat this
we all know that these drugs, most destructive drugs, Manish, it cannot be cut down at one go. But we are sure, if we work hard, it can be minimized up to some extent. So that in a gradual process, it will be minimizing, and one day it may get completely changed. It may get completely changed. That is why हम सभी को आगे आना है. गवर्नमेंट काम कर रहा है, बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. हम लोग भी काम करना पड़ेगा, और जितना एनजीओ से है, सीबीओ से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सबको आगे आना ही पड़ेगा. नहीं तो ये वी आर स्पीकिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ स्पीच, ये नहीं होना चाहिए. इसलिए आज से हम तो जहां भी जाता हूं, ऑन एवरी ओकेजन, practically I'm appealing to people कि अब ये है, रेप ड्रग्स से हम लोग को बचना है. और कभी कभी मन में ये भी आता है कि बिकॉज ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द स्टेट्स जो ट्रेडिशनल ओपियम कल्टीवेशन है, इट हैज बीन एबंडन्ड ऑलमोस्ट. उल्टा ये होगा. तो जो ट्रेडिशनल ओपियम जो था, उसका जगह पे अभी ड्रग्स एंड एनोक भी जैसे ऐसा चीज है. पीपल आर यूजिंग एनोक इन यस एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्स. बट ये भी कंफर्म है कि जो एनोक पीता है, जो यूज करेगा मोर नॉट लेस देन 2 years, ये उसका एक्सपायरी डेट कंफर्म है. इसलिए ये ड्रग्स को यदि हम लोग काब करना है, वंस डायरेक्ट एट वन गो में नहीं हो पाएगा, तो हम सब भी को आगे आना पड़ेगा. उसमें गवर्नमेंट तो रेडी है, हम लोग भी रेडी है. ऐसा होके हम लोग काम करना पड़ेगा. तो अभी ज्यादा नहीं बोल के ये गवर्नमेंट ही बाद में प्रॉपर एसओबी का सन में कुछ वोकट तो करेगा कि गवर्नमेंट कमिटेड है उसमें, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए. गवर्नमेंट कैन single-handedly cannot do anything else. That's why society aware होना पड़ेगा. इतना politicians है, irrespective of any political affiliations and colors, हम सभी को आगे आके साथ में ये काम करना पड़ेगा. तो with you few words, Speaker sir, I wind up my speech. Thank you. Thank you. Next, Dr. Mohesh Chai, Honorable MLA. Thank you, Honorable Sir, Honorable Speaker Sir, for giving me this opportunity to take part in that private member resolution which has been moved by our Honorable MLA Punyo Apumji, and it's regarding substance abuse and the de-addiction. So when we talk about substance abuse, or in a very simple way if we have to say drug addiction के बारे में जब हम बात करते हैं, then definitely हम लोग यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबका मानना है कि ड्रग एडिक्शन एंड यूथ ये दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है. तो ऐसे में आई वुड लाइक टू गो इनटू द एड्रेस ऑफ ऑनरेबल गवर्नर, जिन्होंने 6 तारीख को हमारे इस हाउस को एड्रेस किया था. एंड इन दैट एड्रेस ऑनरेबल गवर्नर साहब ने क्लियरली कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट एंड दिस इज आवर बिगेस्ट एसेट. और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूथ्स ऑफ द अरुणाचल आर नॉट जस्ट ड्रीमर्स बट दे आर डूअर्स, इनोवेटर्स एंड चेंज मेकर्स. एंड हमारे राज्य सरकार ने भी हमारा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-2025 इसको ईयर ऑफ द यूथ घोषित किया था. तो ये यूथ दे हैव टेकन द सेंटर स्टेज इन आवर स्टेट. और आज जब हम यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या सब्सटेंस अब्यूज के बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द यूथ्स ऑफ आवर स्टेट ओनली. हम लोग बहुत मैं फिलोसॉफिकल होना नहीं चाहता, बट वी कीप सेइंग कि यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट, आवर नेशन एंड दे आर द बैकबोन ऑफ आवर चेंज. ऐसे बहुत सारा हम लोग बात करते रहते हैं.
लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें या समाज को कारण समझना पड़ेगा कि हमारे यूथ्स ड्रग एडिक्ट कैसे बन जाते हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में वो लोग कैसे फंस जाते हैं। इसके कुछ कारण, एज ए डॉक्टर, सिंस आई एम ए डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर के रूप में भी आप लोगों को कुछ टेक्निकल कारण बता सकता हूं। नंबर 1 जो सबसे कॉमन होता है, दैट इज पीयर प्रेशर। यारी दोस्ती में कोई अगर ड्रग्स ले रहा है या कोई अल्कोहल ले रहा है तो जो नहीं पीने वाला को अपना जो दोस्त, पीने वाला जो दोस्त होता है वो प्रेशर देता है कि थोड़ा सा पी के देखो, थोड़ा सा पी के देखो, दुनिया अलग लगेगा, यू विल एंजॉय योर लाइफ। ये पीयर प्रेशर होता है और इसी बात में बहुत सारे हमारे यूथ जो है वो ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वन रीजन। नंबर 2, 21वीं सदी है, भागम भाग लगा हुआ है, सब एक दूसरे को पीछे पछाड़ के आगे जाने में लगा हुआ है। स्टूडेंट्स के ऊपर में प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा आगे जाके बड़ा आदमी बने, क्लास में टॉपर बने, तो वो टेंशन कभी कभी बच्चा झेल नहीं पाता है, तो उसके कारण भी वो जो है ड्रग यूज करना शुरू कर देते, जस्ट खुद को टेंशन से दूर करने की। तीसरा एक कारण है जो हमारे अरुणाचल में बहुत आम होता है, कोई एक दारू पीने वाला होता है, तो वो उसको जब बहुत प्रेशर आता है कि दारू छोड़ दो, दारू पी के आप ऐसा गलत काम करता है, वो करता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो क्या करता है, दारू तो छोड़ देता है लेकिन फिर वो ड्रग्स पीना शुरू कर देता है। फिर चौथा कारण है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये पी के एक बार देख लेते हैं, वो पीयर प्रेशर वाला ही चीज है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, इसमें प्रेशर नहीं होता, उसका अपना इंटरेस्ट है कि थोड़ा पी के देख लेता हूं। तो और एक रीजन जो मैंने खुद अपने समाज में भी देखा, देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स, आई वुड नॉट लाइक टू नेम इट, लेकिन क्या होता है उसको जब यूज करते हैं हमारे वहां पे और जब हम एज ए डॉक्टर उसको मना करते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये तो मेरा प्रेशर का दवा है, प्रेशर है ना इसलिए हम दवाई के रूप में ले रहे हैं। कोई बोलते हैं मेरा शुगर बीमार है इसलिए ले रहे हैं, और कोई बोलता है कि मेरा थोड़ा वेट गेन ज्यादा हो गया, पतला होने के लिए ले रहे हैं। लेकिन ये बोलते बोलते उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कब ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। सो दिस आर फ्यू रीजंस। मैं थोड़ा थियोरेटिकल क्लास जैसे ले रहा हूँ। और जब ड्रग एडिक्शन की हम बात करते हैं तो ज्यादातर मैंने स्पीकर को सुना है, कुछ स्पीकर्स ने बोला कि हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि हेल्थ नंबर 1 होता है, जो ड्रग्स लेता है उसका हेल्थ तो खराब होना ही है। एट द सेम टाइम इट इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि जो रुपया पैसा जो भी कमाता है वो अपना बाल बच्चा को नहीं देखेगा, बीवी को नहीं देखेगा और ड्रग खरीदने में अपना पूरा पैसा लगा देता है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है दैट इज द सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में उसका जो परिवार है पूरा बिखर जाता है, उसका समाज बिखर जाता है और हमारा देश का भविष्य भी अंधेरे में चला जाता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट ड्रग्स कैन हैव इन आवर सोसाइटी। फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग HIV को, अभी किसी स्पीकर ने यहाँ पे HIV के बारे में भी मेंशन किया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, HIV को हम लोग एक सेपरेट एंटाइटी के रूप में बात करते हैं। डेफिनेटली इट इज अ सेपरेट एंटाइटी बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय सम वायरस, RNA वायरस, तो HIV अलग होता है। लेकिन फिर अरुणाचल का अगर स्टेटिस्टिक आप लोग देखेगा देन आपको भी नहीं लगेगा कि ड्रग एडिक्शन और HIV 2 सेपरेट एंटाइटी है। हमारे अरुणाचल में एज ऑफ 2024 हमारा जो HIV पॉजिटिव केसेस है 2186 हो चुका है, जिसमें पापुम पारे इज नंबर 1, देन नामसाई इज नंबर 2, और सब कुछ हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ HIV पॉजिटिव केसेस। मैं यहाँ पे नंबर्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन इज द फैक्ट कि जब हम HIV की बात करते हैं तो सबका ये मानना होता है कि सेक्स से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। बट यू आर रॉन्ग, इफ यू थिंक लाइक दैट यू आर रॉन्ग। अरुणाचल का अगर आप स्टेटिस्टिक देखेंगे, अगर आप 100 केस लेता है उसमें से
अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ओनली 16.30% ही HIV उसको HIV लगता है. The maximum percentage of the patient with HIV, they have a history of using infected needles and syringes. Infected needles और syringes कौन यूज करता है? ड्रग एडिक्ट्स. उनके पास needles खरीदने के लिए पैसा नहीं होता तो पुराना needle को एक जन यूज करता है, उसी को दूसरा को शेयर करता है, तीसरा को शेयर करता है, चौथा को शेयर करता है. और उसी चेन में अगर किसी भी एक को HIV पॉजिटिव पहले से होता है ब्लड में, तो उसके बाद जो भी उस सिरिंज को यूज करता है, दे हैव द चांस ऑफ इन कंट्रैक्टिंग HIV. और यही रूट अरुणाचल में सबसे ज्यादा है. दैट्स मोर देन 80%, 81.71%. उसके अलावा HIV का दूसरा और छोटा छोटा है एक, जो अगर HIV पॉजिटिव माँ है तो उससे लगेगा, बच्चे को लग जाएगा, या हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का स्टाफ गलती करता है, सो इरिलेवेंट, मैं इसको नहीं बोलूंगा आपको. तो ये हमें जानना. देन चेंजिंग ट्रेंड्स. पहले क्या होता था कि यूथ लोग ही ज्यादा ड्रग एडिक्ट, अभी किसी ने यहाँ पे कहा भी है, किसी स्पीकर ने कहा है, ऑनरेबल स्पीकर ने, कि पहले हमारे यहाँ पे जब ड्रग की बात आता है, ड्रग सेवन का बात आता है, तो हमारे यूथ्स को ही हम लोग सोचते थे कि यूथ्स लोग लेता है. बट नाउ वी हैव सीन ए चेंज इन द ट्रेंड. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लड़की लोग भी लेना शुरू कर दिया. इस बच्चा जो 18 इयर्स नहीं हुआ वो लोग भी लेना शुरू कर दिया. बड़े इवन फैमिली औरत लोग, जो बच्चा है वहां पे भी आपको केसेस दिखाई दे रहे हैं. तो ये ट्रेंड जो है, ये जो है बहुत ही हमें मतलब सोचने पे मजबूर कर देगा कि ड्रग्स हमारे सोसाइटी को अंदर ही अंदर कितना खोखला कर दिया. ड्रग्स के लिए जैसे स्पीकर्स ने कहा है, बहुत सारा ऐसे अभियान चल रहे हैं. नेशनल लेवल पे नशा मुक्त भारत अभियान हर राज्य में शायद चल रहा होगा. ये सरकार का सोच दिखाता है, हमारे केंद्र सरकार का, कि नशे के प्रति कितना वो लोग भी जागरूक है. और हमारे अपने राज्य में हमारा इसी नशा मुक्त भारत अभियान के वो एडॉप्ट करते हुए हमारे अपने राज्य में मुख्यमंत्री नशा मुक्त अभियान चल रहा है. और इसी के ऊपर में मैं थोड़ा सा हाउस के सामने 2-4 बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि इस बार विधायक बनने के बाद में जब मुख्यमंत्री नशा मुक्त अभियान का एक मीटिंग हुआ था, कोऑर्डिनेशन मीटिंग मेरे अपने जिले में, तो मैं भी गया. वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, बहुत सारे ऑफिसर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, सभी तो थे वहां. इस ड्रग्स के रोकथाम के लिए जो चलन चल रहा है, उसका रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाना है, उसके ऊपर चर्चा चल रहा था. वहां जाके मुझे पता चला कि बहुत सारा स्टेक होल्डर्स, यानी बहुत सारा डिपार्टमेंट अपने ही स्तर पे अलग अलग काम कर रहे हैं. नोडल एजेंसी के रूप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, WCD डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा. होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे एक अलग नशा मुक्त अभियान चला रहा है. हेल्थ डिपार्टमेंट वो अपना एक अलग अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है नशा मुक्त अभियान के ऊपर में. और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट को तो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ, और भी शायद 1-2 डिपार्टमेंट हो भी सकते हैं, बट ये 4 डिपार्टमेंट अपना अपना, कोई उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं. एजुकेशन अपना कर रहा है, हेल्थ अपना कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना कर रहा है, और WCT डिपार्टमेंट अपना कर रहा है. तो उस समय में भी मैंने एक सजेशन दिया था, वी नीड टू कन्वर्जेंस. हमें एक साथ आना पड़ेगा. टारगेट ग्रुप को कैसे अप्रोच करना है, हमें आपस में भाग करना पड़ेगा. एंड दैट इज वन थिंग, क्योंकि यहाँ सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स भी हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को आप लोग देख रहे हैं. तो मेरा आप लोगों से यही एक राय रहेगा या सजेशन रहेगा कि इस कन्वर्जेंस को देखना बहुत जरूरी है. हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लेकिन क्या हम लोग टारगेट ग्रुप तक जाके अवेयरनेस कर रहे हैं क्या? उस टारगेट ग्रुप को हमें अच्छा से आइडेंटिफाई करना है. अभियान जो हमारा चल रहा है, सही में ग्राउंड में अभियान चल रहा है कि नहीं, अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है कि नहीं? क्या स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, क्या स्कूल्स में जाके अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है क्या? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सचमुच ग्राउंड में जाके अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है क्या? क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है क्या?
हमारा WCD डिपार्टमेंट अवेयरनेस कर रहा है, इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अवेयरनेस इज द की, जिससे हम अपने आने वाला जनरेशन को बर्बाद होने से बचा सकते। इसमें जब हम अप्रोच की बात करते हैं इस ड्रग एडिक्शन के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारा सजेशंस भी आया कि कमिटी फॉर्म करना चाहिए और इसके ऊपर में अच्छा से काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जरूरी है, बिकॉज दिस इज द बर्निंग इश्यू ऑफ आवर सोसाइटी इन दिस 21st सेंचुरी। किसी ने सही कहा है, लगभग हर घर का कोई ना कोई इंडिविजुअल ड्रग एडिक्शन से पीड़ित, एंड वी डेफिनेटली नीड टू पॉन्डर अपन कि इसको कैसे रोका जाए, आने वाला जो हमारा नया समाज है, हमारे यूथ से, उनको कैसे बचाया जाए। तो मेरा कुछ ये सजेशंस, सबसे पहले, क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का है, तो मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा ड्रग्स का सेवन हम तभी कर पाएंगे जब ड्रग्स हमारे पास पहुंचे। सो वी नीड टू डिसरप्ट दैट सप्लाई चेन। जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो बाहर से ड्रग्स आ रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से हो या हमारा राज्य का सीमा से बाहर से हो, डेफिनेटली एक चीज तो है कि हमारा राज्य में तो ड्रग्स नहीं बन रहे, इट इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वेदर इट इज द स्टेट बॉर्डर और द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसको कैसे रोका जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें होम डिपार्टमेंट का जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। वो मैंने बोल दिया कि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, दे नीड टू कन्वर्ज एंड टू प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ द टारगेटेड ग्रुप। टारगेटेड ग्रुप को कॉलेजेस में जाना है, स्कूल्स में जाना है, स्कूल में जाके फिर क्लास 5-6 का बच्चा को ड्रग्स के बारे में बोल के ज्यादा फायदा नहीं है। टारगेट एक एज ग्रुप को टारगेट करना है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का बच्चा जो उस रेंज में होता है जहां वो पीयर प्रेशर के में आ सकता है या टेंशन में रहता है। हेल्थ का पार्ट आता है कब, जब डी एडिक्शन का बात आती है, और डी एडिक्शन को लेके भी मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। देखिए हमारे राज्य में हाल फिलहाल में बहुत सारा अनऑथोराइज्ड ड्रग डी एडिक्शन चल, एंड दैट इज रॉन्ग। क्योंकि मेरे अपने जिले में जब मैं विधायक नहीं था कुछ महीने पहले, तब भी मुझे रिपोर्ट आता था। रिपोर्ट कैसे आता था, किसी का एक घर से लड़का उठा के ले गया। कब ले गया, रात को खाना खाने निकला था, खाना खा के हाथ धोने निकला था, उठा के ले गया। क्यों ले गया, नहीं रिपोर्ट ऐसा सुनाई, उन लोगों को ऐसा सुनाई दिया है कि मेरा बच्चा जो है ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बिक्री करता है। मैंने बोला वो तो गलत है सर, गलत तो है, सुधारना तो जरूरी है, लेकिन फिर जो सुधारने के लिए उठा के ले गया है वो भी गलत है। मैं ड्रग एडिक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट द वे द ड्रग डी एडिक्शन वाज बीइंग डन वो गलत था, तरीका गलत था। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ यूथ आके उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी सोर्स से, ये ड्रग का सेवन करता है, तो वो उसको उठा के ले जाता है। उठा के कहां ले जाता है, अनऑथोराइज्ड ड्रग सेंटर में ले जाता है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में। अनऑथोराइज्ड कोई एक किसी का क्वार्टर या रेंट हाउस को वो लोग एक डी एडिक्शन सेंटर बना देता है, वहां उठा के ले जाता है, और ले जाते समय में धुलाई पिटाई अलग, पूरा पिटाई करके ले जाते। उसके बाद में वहां जाके उसको डी एडिक्शन सेंटर में डाल देता है। डी एडिक्शन सेंटर कौन चला रहा है, कोई डॉक्टर है नहीं है, कोई नर्स है नहीं है, डीसी से परमिशन लिया नहीं लिया, मेडिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लिया नहीं लिया, कौन चला रहा है, एक्स एडिक्ट्स लोग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रहा है। तो मैंने बोला ये तो गलत है, बिना डॉक्टर का, बिना नर्स का, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन का डी एडिक्ट्स लोग जो है, जो एक्स एडिक्ट्स लोग कैसे एडिक्शन सेंटर चला सकते। एडिक्शन के लिए तो महीना भर आपको वहां रखना पड़ेगा। उसी बीच जैसे अभी हमारा तांगा साहब ने एडनॉक टैबलेट के बारे में बोला, सिंस आई एम ए डॉक्टर, मुझे मालूम है कि इसको डी एडिक्शन करने के लिए एडनॉक टैबलेट का यूज होता है। दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दैट शुड नॉट बी अवेलेबल, आई शुड से दैट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई आता है या ऐसा स्पेशल डी एडिक्शन कैंप के लिए आपको इसको वो मंगाना पड़ता है। तो अभी एडनॉक टैबलेट is as harmful as any other drug,
अगर उसको प्रॉपरली डॉक्टर्स के बिना सुपरविजन के अगर आप उसको देगा, इट माइट डू मोर हार्म देन गुड। तो उनको वो एडनॉक टेबलेट कहां से मिल जाता है, वो एडनॉक टेबलेट देता है। और उससे भी ज्यादा अगर 5-6 महीने वहां पे उनको रखता है बंद कमरे में, तो उनका अगर 5-6 महीने में कोई दूसरा बीमार भी वो हो सकता है। तो आपके पास तो डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। और सबसे बड़ा बात, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में क्यों आता है, क्योंकि पैसे का डिमांड शुरू हो जाता है। आपको महीने में 8,000 या 10,000 रुपया खाने पीने का देना पड़ेगा, और इतना 1,000 रुपया आपको वहां में फीस के रूप में देना पड़ेगा, जबरदस्ती। आप मानो मत मानो, आपका बच्चा बंद हो चुका है, आपका पति बंद हो चुका है उस डी एडिक्शन सेंटर में, आपको अभी पैसा देना है। तो ये एक सिस्टम चला रहा है, और ये सिस्टम कब उजागर हुआ, जब पासीघाट में इंसिडेंट हुआ। लेकिन उससे पहले, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हाउस, मैंने अपने वहां पे बंद करा दिया सबको, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई न्यू दैट इट वॉज इलीगल। डीसी को बोल के मैंने चेकिंग करवा के उसको बंद करवा दिया। मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई भी अनऑथराइज ये डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। बट देन फैक्ट के ऊपर भी हमें फिर देखना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर्स जरूरी भी है, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी एडिक्ट हो गया है उसको डी एडिक्ट करना है। वो अपने जो गलत काम उसने कर लिया है, अभी उसको पछतावा हो रहा है, और वो छोड़ना चाहता है, तो वो घर में बैठ के नहीं छोड़ सकता। ही नीड्स प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेडिकेशन, और वो उसको डी एडिक्शन सेंटर में मिल सके। सो व्हाट वी नीड टू डू, और व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज दैट हमें अपने स्टेट में ऑथराइज डी एडिक्शन सेंटर्स पे जोर देना पड़ेगा, जो हमारे अपने वेल लर्नेड डॉक्टर्स लोग चलाएंगे। वहां पे जैसे बोला साइकोलॉजिस्ट होगा, तो ऐसा डी एडिक्शन सेंटर। और मैं जानता हूं, क्योंकि सिंस आई एम द एडवाइजर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो अभी बहुत सारा डी एडिक्शन सेंटर पे अभी बन रहा है या बनने का कगार पे है। फिर एक चीज जो कमी, फर्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, सेकेंड इज अवेयरनेस, थर्ड इज डी एडिक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, डी एडिक्शन के बाद में पकड़ लो ऑथराइज डी एडिक्शन सेंटर से जो एडिक्ट है वो डी एडिक्ट होके आ गया, 5-6 महीना वहां बैठा, भजन कीर्तन किया, खेल कूद किया, दवाई खाया, और उसने सही में ड्रग्स छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस फिर सोसाइटी में आता है, तो वो उसी सेम एनवायरनमेंट में फिर चला जाता है, और बहुत सारा केसेस फिर रिलैप्स हो जाता है। तो हमारा जो भी इतना महीना का जो उसके ऊपर में मेहनत करना, वो बेकार हो जाता है। तो इसमें मुझे जो एक कमी दिखाई दे रहा है, दैट इज रिगार्डिंग फॉलो अप विजिट्स। एक बार हम उसको डी एडिक्शन में से निकाल देने के बाद हम लोग उसको पूछते ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसमें हमें फॉलो अप विजिट्स भी करवाना है, हॉस्पिटल से हो या कोई भी डिपार्टमेंट से हो। जो भी लड़का है जहां डी एडिक्ट हुआ है, उसका घर का एड्रेस लेके वहां जाके 20-20 में उसको फॉलो अप करना है, या उसको 20-20 में हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करने का, ऐसा अगर सिस्टम हो, तो मुझे लगता है कि हम जो मेहनत डी एडिक्शन में करेंगे महीना भर, उसका हम लोग जो है असली हम लोग फल खा सकेंगे। देन द लास्ट पार्ट, जैसे ये तो अभी मैं भी सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा कि जरूरी है स्किलिंग ऑफ द डी एडिक्ट। जब खाली बैठेगा, खाली समय जो होता है, ये शैतान का घर बोलता है, ऐसा कुछ एक प्रॉवर्ब है। तो जब खाली बैठता है तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता है, तो घूम फिर के फिर ड्रग एडिक्शन शुरू करता है। तो ऐसे में उसको एंगेज रखना जरूरी होता है। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट भी प्ले में आ जाता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन सभी बिंदुओं पे ध्यान देंगे, तो हमारा जो समाज है, जहां अभी एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, उस इशू को हम लोग धीरे धीरे रिजॉल्व कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी डन एट ए टाइम, धीरे धीरे समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से ये हाउस इज कमिटेड, हाउस के जितने ऑनरेबल मेंबर्स कमिटेड है ड्रग एडिक्शन को लड़ाई करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब अरुणाचल विल बी फ्री ऑफ ड्रग्स। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। मुझे भी लगा कि ये रेजोल्यूशन, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, इट्स ऑन अ वेरी बर्निंग टॉपिक, बर्निंग इशू ऑफ आवर स्टेट। तो सपोर्ट करना है नहीं करना है मैं नहीं जानता हूँ, बाद में विद्रोह भी हो सकता है, बट एनीवे दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू ponder upon. So thank you so much, Speaker sir, for giving me this time. Thank you, Dr. Sahab. Any more member?
कोई है? कोई नहीं तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने के लिए कहूंगा, लेकिन बिफोर दैट, सिंस दिस वेरी important and burning, alarming issue of our state, here I have come to note that more private drugs de-addictions come up in our state. There is more addiction percentage increase. Very serious thing. It is coincident or purposely incident that has to be noted. Government has to take serious note on it. और आज हम डी एडिक्शन के बारे में बात करें तो हम अरुणाचल में पान घुमटी भी खुलता है तो उसमें ट्रेडिंग लाइसेंस लगता है। पान घुमटी जब खुलता है तो ये डी एडिक्शन भी कहीं और खुल रहा है तो इसमें भी तो फीस ले रहे हैं। ये भी सॉर्ट ऑफ शॉप है, सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग, सॉर्ट ऑफ बिजनेस है। तो इसमें तो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। बिना गाइडलाइंस, बिना रूल्स रेगुलेशन से हो नहीं सकता। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न स्टेटमेंट अभी आपका बारी है देने के लिए। थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके जरिए से बताना चाहूंगा कि जो मैटर उन्होंने रेस किया है ये जरूर सीरियस है, और लेकिन इसका बारे में सरकार पूरा अवेयर है और उसका ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम जो आपने बोला है इसका बारे में गाइडलाइंस होना चाहिए और इसका लाइसेंस होना चाहिए जो डी सेंटर चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये अभी हम लोगों ने इसका ऊपर में एसओपी बनाया है, गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसलिए एसओपी का ऊपर में ही हम लोग अभी इसको देख करके जो भी प्राइवेट चलाएंगे उसका साथ ही एसओपी का ऊपर ही करके ही चलाएंगे। इसमें जैसे कि अभी हमारे यहाँ में अभी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो तीन जगह पे है, पासीघाट में है, तेजू में है और जिंगकोंग में है। ये 10-10 नहीं है लेकिन 10-10 का बताया, लेकिन अभी ये 50-50 का फुली बन के पूरा तैयार हो गया है। यहाँ 50-50 लोग हम लोग रख सकते हैं। साथ साथ में हमारे एनजीओ का जो चला रहे हैं, जो ऑथराइज है, उसमें है अपना खोंसा में है, देन अपना तिराप में है, चांगलांग में है, अंजो में है, नामसाई में और वेस्ट सियांग में, और यहाँ ईटानगर लेखी में है। उसका साथ साथ अभी जिस तरह से बजट में अनाउंस किया है डीसीएम साहब ने हम लोगों का, और 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जुड़ा है, जीरो, दापोरिजो, बालापुर, लोंगडिंग में, और वुमेन के लिए भी हम लोगों ने रखा है पासीघाट में फिर से। इसलिए सरकार पूरा अवेयर है। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा है। कंसर्न है यूथ लोगों के लिए, सभी लोग, लेकिन सरकार भी ऐसा बैठा नहीं है, सरकार पूरा काम कर रहे हैं। मैं जब लास्ट टाइम मंत्री बनने से पहले मैं जब प्रेसिडेंट था, मैंने भी वहां जब अपना खोंसा में गया था, वहां में एक डी सेंटर एक लेडी चलाती है वो, तो वहां हम लोगों ने विजिट किया। विजिट करके उन्होंने जिस तरह से करा है वो देख करके हम लोगों ने खुद से भी, जैसा अपना तपो तपम जी ने कहा है, हम लोग खुद एमएलए भी कभी उस जगह में ऐसे जगह में जाते हैं तो हमें भी उन लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम लोग बोलते जरूर है, अच्छा बात है, सोचता कंसर्न करता है, लेकिन कंसर्न का साथ साथ में हम लोगों का तरफ से भी एक्शन होना बहुत जरूरी है। यूथ अभी हमारा बैकबोन है, सब जानते हैं। इसका बारे में सोचना सभी को हम जरूरी है। आप लोगों ने कंसर्न रखा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं सरकार भी ऐसे नहीं बैठा है, सरकार पूरा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब लेखी का जो अपना 50 बेड वाला है वहां पे भी मैं गया था, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा अभी ट्रक लेकर के किस तरह से रजिस्टर खराब होते जा रहा है, फिर लैप्स हो जाता है, निकल के आता है, फिर लैप्स होता है, फिर वो प्रोसेस ईटानगर में जिस तरह से देख रहे हैं और तिराप चांगलांग वगैरह जहां में हम जाके देखते हैं वहां देखा है मैंने। इसलिए मैं सोचा कि एज हेल्थ मिनिस्टर मैं भी एक बार विजिट करूं। उनसा में तो गया हूं, लेकिन यहाँ लेखी में मैं जाके देखा, वहां पे सभी लोग वहां पे थे, फिर उनका साथ में बैठ करके मैंने इंटरेक्शन किया। सभी लोगों ने अपना अपना बारे में बताया, सर मेरा तो फैमिली का रीजन से है, ऐसे ऐसे हुआ, माँ नहीं है, किसी का पिताजी नहीं है, लेकिन कोई का ऐसा इशू नहीं है। सब लोग ऐसे में नहीं, सभी लोग कुछ लोग है कि दोस्त का साथ मिल करके बस ऐसे लेके देखेगा, एंजॉय करेगा, करके उसी में हो जाता है। सब लोगों का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि सबका गरीबी के कारण से या अपना हम
माँ पिताजी का या अपना किसी वजह से ऐसा ऑप्शन होने की वजह से ऐसा कारण नहीं है। कोई लोग तो जैसा डॉक्टर तत्व जी ने बताया है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाला लोग है। तो इसलिए हम लोगों को इसका बारे में खुद आप भी साथ में दीजिए, हम लोग भी साथ दे रहे हैं, सरकार पूरा काम करे इसका बारे में। वहां इंटरेक्शन करते करते मैंने सोचा कि वहां, क्योंकि ये सब तो वहां में डीएडिक्शन सेंटर में तो खाने पीने का तो रोज देते हैं, लेकिन अलग एक टेस्ट लेके जाएगा बोल के मैंने उन लोगों के लिए पिज्जा और वो क्या बोलते हैं अपना कोक लेके गया। पूरा इंटरेक्शन करने के बाद उन लोगों को दिया, तो कभी उनको वहां बैठ के तो पिज्जा खाने मिलता नहीं है, तो पिज्जा वगैरह लेकर के उनको खिलाया, ये सब कराया। बात करते करते सभी का कारण निकाला, लेकिन वहां में से एक लड़का ने मुझे, जब हमारा इंटरेक्शन पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो वहां से एक लड़का ने पीछे कोना बैठ करके उन्होंने बताया, सर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। तो मैंने बोला ये साहब बोलिए। उनका भी यही कहना था कि जो किसी ने अभी लड़की का बारे में, फीमेल का बारे में, गर्ल्स का बारे में बोला, उनका भी यही कहना था, हम लोगों को तो, बॉयज को तो, लड़का को तो आप लोग डीएडिक्शन पर बना के रख दिया, लेकिन यहाँ अरुणाचल में, ईटानगर में हो, नामसाई में हो, चिराब चांगला कहीं में भी हो, लड़की लोगों का भी कमी नहीं है लेने वाला। तो उनका रिक्वेस्ट था कि जैसे भी हो लड़की लोगों के लिए भी डीएडिक्शन सेंटर बनाया जाए। सही बात है। तो उसका ऊपर हम, जैसा आप लोग सोच रहे, उससे पहले मैं काम कर रहा हूं। मैं, आप सोचा जरूर है, लेकिन एज हेल्थ मिनिस्टर मुझे भी करना जरूरी है, क्योंकि मैं कर रहा हूं ये काम, मुझे भरोसा रखिए। उसका बाद वहां में हम लोग का जहां लेखी में जो बिल्डिंग पड़ा हुआ है, वो शायद वो अर्बन डिपार्टमेंट का है क्या, यूडी का है शायद, तो वो हम लोगों का शायद कोविड का टाइम में भी वो बिल्डिंग यूज किया था हम लोगों ने। बाद में उसका बारे में हम लोगों ने सोचा कि उस बिल्डिंग को ही क्यों ना यूज किया जाए। सीएम साहब को मैंने बताया, तो सीएम साहब ने बोला कि नहीं, जमीन देखो। होम मिनिस्टर हम दोनों को ही बोला था कि आप दोनों को यहाँ जमीन देखिए ईटानगर में, ये एक अलग से डीएडिक्शन सेंटर बनाया जाए। लेकिन ईटानगर में आपको खुद मालूम है कि यहाँ जमीन मिलना कितना मुश्किल है। तो बाद में घूम फिर के शायद से, मेरा ख्याल से अभी जो हम लोग करेंगे उसी लेखी में ही हम लोग एक अलग बिल्डिंग लेकर के वहीं में ही फिर और नंबर्स बनाने के हम लोग बढ़ाएगा। इस तरह से उसका 50 से ज्यादा शायद नंबर हम बढ़ा के उसको भी और करेंगे। दूसरा बात है कि आप लोगों ने बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों ने बोला कि सब जगह में हर डिस्ट्रिक्ट में देना जरूरी है, लेकिन अब जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलूँ, पके किस्म मेरा वहां तो इतना तो प्राइसिस नहीं है डीएडिक्शन। तो सरकार हम लोग देख रहे हैं उसको जहां जहां में जरूरी है। जैसा अभी हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट का हमने अभी अडॉप्ट किया है, तो आगे जाकर के जरूर साल में हम लोग एक करके कहाँ में ज्यादा अपना ये ड्रग एडिक्ट लड़का लोग है, यंगस्टर लोग जहाँ पे है, वो जगह देख करके हम लोग जरूर एडॉप्ट करेंगे। कि हमारा भी कंसर्न, सरकार का ड्यूटी है हमारा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि, और साथ साथ में हम लोगों का अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से टेलीमानस नंबर, उसको आप ओवर फोन, टेलीफोन से, मोबाइल से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहां कंसल्टेशन देते हैं आप। किसी को अगर ड्रग से अगर निकालना भी है, तो अगर वो डीएडिक्शन सेंटर जाना भी नहीं चाहता है, तो वो टेलीमानस के जरिए ही आप उसको कंसल्ट करके वो आपको पूरा किस तरह से इसको निकालना है, कैसे, वो कंसल्टेशन करेंगे आपके साथ। वो सुविधा भी हम लोगों ने दिया हुआ है। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सरकार, प्राइवेट जो हॉस्पिटल जो डीएडिक्शन सेंटर बना रहा है, इसका ऊपर पूरा हम लोगों ने एसओपी बना दिया है, और जो भी प्राइवेट स्तर से बनाना चाहेगा वो एसओपी को लेकर ही सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जरिए से ही करके ही हम लोग करेंगे इसको। जैसे जिसने जो लोगों ने अपना जहां इच्छा किया वहां खोल नहीं सकेंगे, उसको तो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो रिकॉग्नाइज होगा वो एसओपी के हिसाब से ही जो करेंगे, उसका ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मेरा जो प्राइवेट मेंबर जो इसमें इन्होंने मूव किया है, अपुम जी को मैं कहना चाहूंगा कि इसको विड्रॉ करें, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप मुझे विश्वास करें, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसका ऊपर में। तो मेरा यही आपसे गुजारिश है कि इसको विड्रॉ करें और हमें सरकार को काम करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, आप कुछ कहना चाहते हैं और आप ऑनरेबल मिनिस्टर का जवाब में। स्पीकर सर, आपका माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा, एक्चुअली मैं विषय लगभग अच्छा से नहीं रख पाया होगा, फिर भी जितना भी हमारा ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्टिसिपेट किए हैं उन लोग से हमें काफी ज्ञान मिला है, किन किन मुद्दों में कैसे कर सकता है और इसका वजह क्या है, और मिलकर अगर काम करेगा तो हम लोग ड्रग्स को कितने दूर रख सकते हैं हम,
ये एक्चुअली हमारा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर होने के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट्स में एक और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं। जैसे मैं हमारा फर्स्ट सेशन में भी मैं ड्रग्स के बारे में कहा था, शायद रिकॉर्ड में होंगे, कि मैं एग्रीकल्चरल लिटरेरी सोसाइटी से मैं महामंत्री था। तो स्पेशली रोइंग में हम लोग इसी के ड्रग्स के बारे में भी काफी काम किए हैं। जहाँ जहाँ प्राइवेट जो डी एडिक्शन सेंटर है उसमें भी हम लोग कंट्रीब्यूशन भी किए, लेकिन मोड ऑफ ऑपरेशन डी एडिक्शन का क्या नियम कानून है हमको मालूम नहीं था। और आज हमारे मिनिस्टर हेल्थ के माध्यम से और अच्छी नेतृत्व हमारा सीएम साहब और डीसीएम साहब और मंत्री मिनिस्टर कंसर्न की वजह से ये स्टेप्स ले रहा है, और ये तो सदन के लिए अच्छी बात है और हमारे नई पीढ़ी के लिए, जो आने वाले पीढ़ी के लिए ये अच्छा एक पॉलिसी रहेंगे। और स्पेशली जैसे ऑनरेबल एमएलए तेजू ने कहा, इसमें जैसे कि पुलिस प्रोसेशन है, ये भी अच्छी तरह से छापला चेन को रुकाना पड़ेगा। इसके लिए हमारा एक काम मैं कब किया था लास्ट, ये अभी जो एसपी रोइंग है वो एसपी था पहले, तो मैंने मोपी मिहू जी को रिक्वेस्ट किया है और बुचुमिति जी को एडवाइजर तो होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि देखिए आप तेजू से हो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी होके आएंगे, असम से आने से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी होके आएंगे, और पासीघाट होने से भी पासीघाट से भी वही हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी होके आते हैं। और हमारा लगभग जितने भी सारा मैंने एरिया है रोइंग लोअर दिबांग वैली पार्ट जो हमारा 99% असम से हमारा सीन, तो कई गेट तो नाम का है, बाकी गोरू गाड़ी घुस जाता है, बाईसाइकिल घुस जाता है, गाड़ी मोटरसाइकिल घुस जाता है। और जहाँ आइलैंड है जैसे कि हमारा सब डिविजनल पागलाम सर्कुल है, वहाँ रात को कंट्री बोट से, स्टीम बोट से, इंजन स्पीड बोट से लेके ये काम चल रहा है। और स्पेशली पुलिस भी काफी तकलीफ मिल रहा है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो मैं जहाँ हमारा देख रहा है आज तो तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कल में वो भी पहुंच जाएंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया इसको मोपी मिहू जी को, आपका तो 0 क्राइम है हुआ में, और यहाँ अच्छा से अगर हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे तो रोइंग और आपका अनिनी महफूज होगा। तो मैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है उसी को देख के मैं सदन में रखा, और ये अच्छी बात है कि सरकार काफी काम कर रहा है इसके ऊपर में। तो मैं विश्वास करता हूं और आगे मिलके ऐसे हमारे नई पीढ़ी के लिए जो खतरा है उसको थालने के लिए हम हमेशा कंधे पे कंधे मिला के काम करेंगे एकजुट में। और जो भी मैकेनिज्म इसको सफलता बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप सरकार को भी हम सहयोग देंगे, सुझाव देंगे, कहीं भी जरूरत पड़े तो हमें जरूर खबर कीजिएगा। मैं इसलिए आपके माध्यम से जो मैं प्राइवेट रेजोल्यूशन रखा था, तो मैं हमारे मंत्री जी के बातों पे मैं विश्वास करता हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं हमारा प्राइवेट रेजोल्यूशन को विड्रॉ करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। Now, this resolution, private member resolution, stand withdrawn. I adjourn the House to meet again at 10 a.m. on 11th March 25. That means tomorrow.